Yes, congratulations, Ganesh bhai. The answer is right. Thank you, sir. Thank you. Yeah, in our first session, we understood, we had an introduction round also, and we had that exercise. And here you can see that your answers are there. Your answer is absolutely right. Now we have got some more joinees there. Utpal bhai in the first part, he gave the answers. Okay, here we have got more answers now. Okay, okay. So in our first part, we had exercise. I can see 9 dots here, Utpal bhai. I can see very well 9 dots there. If you can darken the lines. So should I explain now in the figure? Yeah, in the figure, but your answer is not visible. Dots are visible, the lines are not visible. Yes, will लाइंस do it. अभी मैंने He will बताई नहीं है. display. हाँ, he will do मैं it अभी for इसको you. डिस्प्ले करता हूँ ड्रॉ करके. Oh, that's So that very will be nice. You will explain it. That's wonderful. Please go ahead. okay. Okay. Utpal bhai would require your voice also. Is it visible, right? Yes, it is visible. Fine, it is visible now. Okay. So starting from here, we have to exit further after third dot as well. Okay. You have to think out of the box is the main meaning of that. Okay. Then we have to come with a center, again cross this and reach here. Okay. So it will be again out of the box. Okay. Then we have to come this side. Fine. Join this line. This is the third line. Right. And this is the fourth line. Perfect. So in this way, we are touching all the dots as well as we are not picking it up. And perfect. It's only four. It's only four moves. So with the 4 lines, you were able to do that. Can anyone have the answers? कि जिन्होंने प्रयत्न किया, अभी तक आंसर नहीं आता, लेकिन प्रयत्न किया, आपका खाली जो रफ वर्क है वो बता पाएंगे स्क्रीन पे? और कोई? Utpal bhai, you have rightly said and you have rightly shared the learning behind this exercise also, right? This 9 dot exercise which we did in our first part, you have rightly shared the understanding also. और कोई जो बता पाएगा उनका क्या वर्क किया वो बता पाएंगे? स्वांगी मैम, रोशनी जी, सोहम भाई. Okay, yes. Here we have Ganesh having his yes, all the work. Fine, fair, Ganesh bhai, fair. From the fourth effort, you started moving out. See, from the first, second, third, fourth. From the fourth effort, right? Fourth attempt से आपने बाहर निकलना चालू किया. So what does that mean? पहले हमने क्या किया कि पहले आप एक स्क्वायर के अंदर काम कर रहे थे, राइट? दूसरे में आपने ट्राई किया, तीसरे में ट्राई किया, लेकिन एक जो इनविजिबल स्क्वायर जैसा हमने माइंड में बना लिया था, उसी के अंदर हम काम कर रहे थे, उससे बाहर निकले. अनिल सिंह, कैन यू शो योर रफ वर्क if you tried or if you had answer? आवाज नहीं आ रही सर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, गायब हो जा रही है. आवाज नहीं आ रही है अनिल सर? I don't know. Only I am facing or somebody else is also facing. Okay. Now it is better. Now it is better. Fine, good. पर अभी ऐसा है मतलब अनिल सर, अभी अमित सर की प्रॉपर हो गई, आपकी कट रही है अभी जरा. Till that time, what we do is we have now Swangi ma'am's screen sharing is there. Okay, fine. She had shared the screen and see the lovely answer. Fair. See, you can see in the bottom. आपने देखे पहले उन्होंने जो ट्राई किया हो रहेगा वो एक स्क्वायर के अंदर काम कर रहे थे, and now she is always there on the answer. Fine. Thank you for sharing the screen. और कोई बता पाएगा? Next. Okay.
You can stop sharing screen, Swangi ma'am, now. Thank you for the answer. Okay. सर स्क्रीन बैक कैसे करूं सर? आपको ऊपर जाके स्टॉप शेयरिंग करना है. ओके, मुझे जल्दी से. गुड. हाँ, गॉट इट. ओके सर. फाइन. प्रकाश सर, आपने ट्राई किया था? जिग्नेश भाई? मैंने ट्राई किया था, मैं आपको शो कर रहा हूँ. ओके. मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ था. फिर रोशनी मैम दिख रहा है, आपका ट्राई दिख रहा है, राइट? पहला, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट दिख रहा है. तीसरा जो अटेम्प्ट है आपका, पहला दूसरा अटेम्प्ट में देखो स्क्वायर बन रहा है. एंड वंस यू गॉट द आंसर एंड यू ट्राइड, मे बी दैट इज फाइन. बट पहला और दूसरा जो अटेम्प्ट है आपका स्क्वायर बन रहा है. और मैं वही देख रहा हूँ, गणेश भाई का पहला दूसरा आंसर जो था एक इनविजिबल स्क्वायर के अंदर काम हो रहा था. व्हाट इज दैट इनविजिबल स्क्वायर? दैट इनविजिबल स्क्वायर इज समटाइम व्हाट वी डू इज, हम अपने तरीके से ही एक दायरा बना लेते हैं अपना, कि मैं यही कर पाऊंगा, मैं वही कर पाऊंगा, या तो मेरे से ये होगा, मेरे से ये नहीं होगा. एक हम खुद ही अपनी एक बाउंड्री बना देते हैं. सो ऑल वी नीड टू डू इज, वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड that we have created such at various places. Maybe it is our family, it is our relationship at working place, maybe it is our relations at society and other places, maybe it is our working style, maybe it is something what we eat, maybe it is our daily routine exercises or our day routines. So whatever is happening is, हमारा एक दायरा है. हम देखिए अभी प्रकाश सर का वर्कआउट देख रहे हैं, उसमें भी देखो कि ए से सी तक, और अगेन ए से सी तक जा रहा है. मतलब पहले प्रयत्न में, पहले अटेम्प्ट में उन्होंने एक स्क्वायर के अंदर काम किया. हालांकि ये स्क्वायर तो नहीं था, ये खाली 9 डॉट था, राइट प्रकाश सर? नाउ थैंक यू. Yes sir. Thank you for the screen sharing. Now you can off your screen. We can easily see कि एक दायरे के अंदर हम काम कर रहे हैं. एक्चुअल में ये दायरा था नहीं, ये तो 9 डॉट्स थे. फिर भी हमारा जो पहला अटेम्प्ट रहता है या दूसरा तीसरा अटेम्प्ट रहता है, वो एक स्क्वायर के अंदर बन रहा है. देयर इज नो स्क्वायर इन दैट. सो जनरली वी आर टेंड टू वर्क इन अ परसीव्ड लिमिट्स. हमारा बिलीफ, हमारा कल्चर, हमने जो अभी तक हम जो सीखते आ रहे हैं, हमारा जो लर्निंग का बोझ बन गया है, उसके कारण जो एक छोटा सा दायरा बन जाता है, उसी के अंदर हम घूमना चालू करते हैं. वी नेवर लुक बियॉन्ड द बाउंड्रीज एंड सी द हेल्प ऑफ दिस पेंडेमिक. कैसे कोरोना आने के बाद में फायदा क्या हुआ वो देखिए. उसके बाद में वी ऑल आर सिटिंग एट आवर प्लेसेस एंड वी आर लर्निंग. इससे पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि हम दोस्त, हम ट्रेनर, सब को वर्कर्स मिलके सैटरडे एक बार या तो थर्सडे लर्निंग डे बना के हम साथ में मिले और लर्निंग करें. पहले सोचा नहीं था, पहले हम कर भी नहीं सकते थे. एंड नाउ वी हैव थॉट, वी हैव डिस्कस्ड एंड वी हैव गॉट वेरियस फोरम. नाउ इन वेरियस फोरम वी कीप मीटिंग. पहले से ज्यादा फैमिली अभी मिल रही है, पहले से ज्यादा को वर्कर्स मिल रहे हैं, पहले से ज्यादा लर्निंग हो रहा है, पहले से ज्यादा टाइम यूटिलाइज हो रहा है. तो कुछ बड़ा होने के बाद में ही पता चल रहा है, रिसोर्सेज लैक होने के बाद में ही पता चल रहा है कि नहीं हो पाएगा, राइट? सो इट इज नाउ द टाइम टू अंडरस्टैंड कि बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा. अमित सर, इसमें एक और मेथड भी निकला है जिसमें अपने को लाइन एक्सटेंशन की जरूरत नहीं रही. तो आप बोलो तो मैं उसको भी शेयर करूं. जी पक्का शेयर करिए सर, पक्का. यस यस उत्पल भाई, थैंक यू फॉर द आंसर. It's absolutely now what we need to do is beyond boundaries. We need to develop the culture beyond boundaries. Yes sir. इसमें सर आप देखोगे ना, सबसे छेले वाला, हाँ, इसमें 3 सीधी लाइन कर दी और बीच में से एक क्रॉस लाइन कर दी. सही है सर. आंसर सही नहीं है. 9 डॉट्स कनेक्ट हो गए 4 लाइन से, लेकिन हमें अपना हाथ उठाना नहीं था ये प्रोसेस के दरमियान. अच्छा, जी. ओके, समझ गया. ओके. I must appreciate your various kind of the attempts to solve the problem, because एक ही तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है. we need to have the different techniques, strategies. प्लान ए, प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए.
और प्लान सी तक क्यों रुके, एबीसीडी में जेड तक जा सकते हैं ना, तो व्हाई शुड वी स्टॉप एट जेड? Today morning I was having a discussion with one of my peer, old colleague also. बता रहा था मुझे कि करीब करीब उसने 300 अलग अलग बिजनेस में फेल किया। मुझे बोल रहा था कि अभी तो 100, 300 और 300 से लेके 1000 तक जाना है, क्योंकि 1000 करते हैं ना तो वो बल्ब का क्या हुआ था, किसने खोजा है? इफ कैन एनीवन हेल्प मी रिमाइंडिंग दैट नेम? थॉमस एडिशन। थॉमस अल्वा एडिसन, राइट? एक 1000 प्रयत्न करने के बाद में ये हुआ। सो हमें भी उतने प्रयत्न तो मिनिमम करने, ये समझ लीजिएगा सक्सेस के लिए। इट डजंट मीन कि हम पहले बार में सक्सेस नहीं होंगे, इट डजंट मीन दैट, बट यस वी शुड ऑलवेज बी हैविंग दैट पॉजिटिव एटीट्यूड टू लुक टुवर्ड्स द बिग नंबर ऑफ द अटेम्प्ट्स फॉर आवर सक्सेस। सो वो नंबर 1000 भी हो सकता है, 10,000 बार भी हो सकता है। एज इज नो लिमिट, एज इज नो लिमिट, फील्ड इज नो लिमिट। मैं ये करता था, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग में था, मैं मैथ्स का टीचर कैसे बन गया, देखिए यू आर नाउ एक्सलेंट रिनाउंड टीचर फॉर द मैथमेटिक्स। सो द वे हम कौन सी फील्ड में थे और क्या कर रहे हैं उससे कोई मायना नहीं रख रहा है, बट वी नीड टू हैव ओनली वन थिंग इन माइंड, दैट जब तक ये नहीं होगा मैं करता रहूंगा। जब तक आई डू नॉट रीच एट द लेवल कि जहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, समाज को, सोसाइटी को नहीं, मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि मैंने जो किया वो बहुत बढ़िया किया, तब तक मैं करता रहूंगा। That beyond boundary culture we should have, that beyond boundary attitude we should have if we are here at the platform to become a trainer or the leader or someone who takes the responsibility to build a beautiful nation. जब हम ट्रेनर या तो मोटिवेटर्स, हम हमारे में से कई मेंटर्स है, कोचेज है, तो हम कोच, मेंटर, मोटिवेटर बनने के लिए और उसको हम खुद को पॉलिश करने के लिए जब यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, we must focus on one part, that is we should be always having the beyond boundary attitude. And with that, if you all allow me, I shall further go for the slide sharing and take the session ahead for the next topic. If any one of you want to share your learnings of this exercise, please come and share the learning of yours. आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे तो प्लीज शेयर योर लर्निंग फॉर द। मे आई सर, मे आई? यस सर, प्लीज। देखिए सर, मैंने कोई भी आपको रफ वर्क अपना दिखाया नहीं, हाँ, राइट? तो मेरा ये प्रॉब्लम है कि बीइंग अ मैथमेटिक्स टीचर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेरी ये आदत है कि जनरली अनटिल अनलेस जब तक रिक्वायर नहीं है मैं पेन पेपर को यूज ही नहीं करता। फर्स्ट थिंग इज दैट। समझ रहा हूँ सर। So I don't have any rough work. Even my students don't have any rough work. Right. दूसरी चीज मैंने ये देखी कि इसका आंसर मुझे पता था, हाँ. और along with this मैं अपने क्लास में बहुत सारा आउट ऑफ माइंड थिंकिंग के बहुत सारे एग्जांपल्स देता रहता हूँ, या इवन छोटे बच्चे हो या कॉर्पोरेट लेवल के, मतलब ग्रेजुएट स्टूडेंट हो। उसमें सबसे सिंपल एग्जांपल मैं स्टूडेंट्स को ये देता हूँ। दिस इज वन ऑफ द अदर एंड वेरी सिंपल एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी। मैं सबको ये बताता हूं कि ड्रॉ अ स्क्वायर इन योर पेपर। ओके। तो आप 100 स्टूडेंट्स को बोलेंगे ना कि अपने पेपर में स्क्वायर ड्रॉ करो, तो वो सीधा एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन वाला स्क्वायर ही ड्रॉ करेंगे। ओके। नोबडी विल ड्रॉ अ स्क्वायर विथ डायगोनल लाइन। ऐसे एंगल से मैं आपको कल या व्हाट्सएप में ग्रुप में भेजूंगा, ऐसा एंगल नीचे फ्लोर पे पड़ा है और ऐसे वर्टिकली डायगोनली सीधा पड़ा है ना, ऐसा स्क्वायर कोई ड्रॉ नहीं करेगा। इट्स वेरी बेसिक थिंग कि आपको स्क्वायर, यही क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट है रीजनिंग, तो रीजनिंग में ये होता है कि आपको स्क्वायर क्या दिखता है, जो स्क्वायर है वही दिखता है, पर जो है पर आपको दिखता नहीं है वैसा स्क्वायर आप कैसे ढूंढोगे। तो दोज आर द वेरी स्मॉल एंड वेरियस एक्टिविटीज कि जो आपको, आप छोटे बच्चों को भी आप दे शुड थिंक आउट ऑफ देयर माइंड, वो आप बता सकते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज है मैं अपने क्लास में बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, जस्ट बिकॉज कि वो मैथ्स के लेक्चर में बोर ना हो और उसको बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से एंटरटेनमेंट मिले, एज वेल एज लर्निंग भी हो सकता है। सो दिस वाज माय लर्निंग। तो ये थिंकिंग आउट ऑफ आवर माइंड इज
amazing concept. It was basically, it was. Thank you very much. Very nice, very nice. Thanks for your learning. Thanks for your sharing also, right? And thanks for some of the great idea. And Jignesh bhai, one thing you told here was that you visualize more than you do it, right? So there are various in our mind. There are different people, and it is called that trunde trunde mati bhinna. तो Yes, sir. हर एक लोगों का अलग अलग माइंडसेट रहता है, हर एक लोगों का तरीका अलग रहता है, लर्निंग का तरीका अलग रहता Yes, है, sir. हर एक Yes, लोगों sir. Yes, का sir. एक्सप्लेनेशन का तरीका अलग रहता है, किसी का समझने का, किसी का समझाने का, किसी का जीने का, राइट? सब तरीके अलग है. सो being a trainer, being a coach, being a mentor, we need to now understand that what are these three basic principle of learning. We need Yes, to sir. understand which are Yes, sir. different three methods और different three principles of learning की जिससे लोग समझते हैं. तो उसमें थोड़ा मैं Yes, चाहूंगा कि फोकस दे. And for that there is a small role play for you all, right? There is a small project for you all, that now you need to explain importance of why study is important. Your target audience is students. Your target audience is student, right? Now we will go into depth for the train the trainer program, right? And for that I am just giving you one topic. This topic is now ready for you to impart. You have got only 1 minute to think, design, visualize, having do rough work. जो भी करना है आपके पास में 1 मिनट है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स को. टारगेट ऑडियंस इज स्टूडेंट्स, तो आई वुड बी योर स्टूडेंट देन. एंड आपको बताना है कि व्हाई स्टडी इज इंपॉर्टेंट, ये आपको बताना है. सो व्हाट यू डू, हाउ यू डू, इट इज ऑल अप टू यू. We will have 1 or 2 role play or 1 or 2 case study, and then we will proceed for our topic. Yes, anyone? So now let me start the timer. We have 30 seconds to plan, visualize, and this. The time has started now. You can think on, you can start thinking, and sooner I would like to have one of the volunteer to present it to me, present it to our audience also. Keep thinking. Thank you, Anil sir, for the replying and acknowledging us that that was a wonderful learning, out of box thinking. Thank you. Need to stretch ourselves. थोड़ा खींचना पड़ेगा, खुद को थोड़ा खींचना पड़ेगा. 2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे, थोड़ा आधे घंटे एक्सरसाइज करना है, मसल्स चाहिए, बॉडी फिट चाहिए, आधे घंटे का पौना घंटा करते हैं. उत्पल सर बता रहे थे ना कि कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है. दिन में 3 बार खाने के लिए बैठ रहे हैं, 1 बार कर लीजिए, 2 बार का टाइम बचेगा. We'll come to that topic specially, right? However, this was just for the humor also. But from my side, I will surely tell you that कि I eat only once a day. Grain वगैरह, अनाज मैं दिन में 1 ही बार खाता हूँ. Yes, sir. Thank you. Thank you. So Well, important this is. वेरी नाइस. वेर 2 बार का तो मेरा खाने के लिए जो टाइम वेस्ट होता है, मुझे 1 ही बार अनाज का जरूरत है, तो 1 ही बार खाऊंगा, टाइम बचेगा 2 बार का. आई सेव 1 hour इन दैट, एंड आई सेव एनर्जी ऑल्सो इन दैट, बिकॉज ग्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी हमारा यूटिलाइज होता है, दैट इज द हाइएस्ट एनर्जी थ्रू आउट द डे टाइम. I think now the time is up for thinking. If we have 1 or 2 volunteers, would be fine. Explain importance of why study is important, and the rest would be the audience to listen it. Target audience is student. I'm okay with it, sir. Fine, please If go ahead. anyone is ready. Right, that's great. So we have Utpal bhai sharing the topic. This is extempore. अभी topic दिया और अभी आप बता रहे हैं, and that is what Utpal bhai is ready. So please go ahead. Okay, it's like as you said, it's just a 30-second में जो भी
हमको स्टडी का इम्पोर्टेंस बताना है स्टूडेंट्स को, तो हम सबसे ज्यादा बेस्ट उसको कैसे बता सकते हैं? आई थिंक व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई एंड इन्वॉल्व स्टूडेंट को थोड़ा क्रिएटिव तरीके से ले जाके ही आई विल डू दैट। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कॉल वन स्टूडेंट ऑन द स्टेज इमीडिएटली कि आप अभी इधर स्टेज पे आ जाओ। उत्पल भाई, हाँ जी, just intervening you, you understand that this is a role play, so Correct. for all the mentor and coaches and trainers here, role play is a method of training others that what it is happening and how it is happening. There is a big study specifically for the role play. We will have a special session, but this is just an understanding. role play में क्या करेंगे आप, मुझे एज अ स्टूडेंट ले लीजिए या किसी Okay. एक पार्टिसिपेंट फ्रॉम हियर, उसको कोई भी वॉलंटियर को आप स्टूडेंट ले लीजिए, एंड यू शो दैट यू डू इट, यू डेमोन्स्ट्रेटेड इट रादर देन टेलिंग दैट हाउ आई विल डू। कैसे करूंगा वो बोलने की जगह आप वो करके दिखाइए, एंड वी विल वॉच, ऑब्जर्व, एंड वी will then give you the feedback that how was that. So this is how the idea behind role play is. This is how we have started our journey to the train the trainer. Training फैसिलिटेशन स्किल और ट्रेनिंग के अलग अलग तरीके हैं, कुछ ही एक चीज को सिखाने के लिए 10 अलग तरीके हैं। रोल प्ले इज वन ऑफ दैट मेथड। सो इफ नाउ यू आर रेडी फॉर दैट, माई सेल्फ कैन बी अ वॉलंटियर एज अ स्टूडेंट। मैं आ रहा हूँ अमित भाई, आज अमित भाई, आज तक आप पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, राइट? अब आज की डेट में मेरे को आप बताइए, पढ़ाई क्यों जरूरी है आपके हिसाब से? मम्मी बोलते पढ़ने को, पापा बोलते पढ़ने को, हम भी बोलते पढ़ने को। आपके हिसाब से पढ़ाई क्यों जरूरी है? अगर मैं चलो थोड़ी देर के लिए मानता हूँ अमित भैया पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, तो पढ़ना नहीं चाहते तो क्या चाहते हो जिंदगी में? क्या चाहते हो? आपका ड्रीम क्या है, सपना क्या है? सर मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। राइट, वेरी गुड। अभी फिर आपकी सवाल पे आता हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो और पढ़ना क्यों चाहते हो? क्या होगा पढ़ाई से? पापा चॉकलेट देते हैं सर, अच्छा पढ़ता हूँ तो। हाँ, तो अच्छे पढ़ते हो, अच्छी बात है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। इस पढ़ाई के पीछे उद्देश्य आपके जीवन में क्या बनना चाहते हो? आपका क्या सपना है? मैं बड़ा बनना चाहता हूँ सर। वेरी गुड। बड़े बनने के लिए आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या मिल जाएगा तो आप समझ लो सबसे बड़े बन जाओगे? सर अच्छा खाना पीना खाऊंगा, बहुत बड़ा बन जाऊंगा सर। आई एम नाउ 68, माई वेट इज 68, मुझे और भी आगे बढ़ना है, हाइट भी बढ़ाना है सर। तो अच्छा हेल्दी वेरी फूड गुड, खाऊंगा तो मैं बड़ा बन जाऊंगा सर। वेरी गुड। हेल्दी फूड खाओगे, एक्सरसाइज करोगे तो बड़े बन जाओगे। जी, लेकिन आप जो अच्छा खाना, अच्छा पढ़ने की, अच्छी जगह रहने की बात कर रहे हो, उसके लिए कुछ लगता है, पैसे लगते हैं? खाने के लिए नहीं सर, पापा ला के देते हैं। राइट, तो ये पापा कब तक देते रहेंगे? जब तक एक दिन मैं, आप भी पापा बनोगे ना? हाँ मैं बनूंगा सर, पापा बनूंगा। राइट, तो आपका भी बच्चा ऐसे ही उम्मीद करेगा मेरे को कोई टेंशन नहीं, पापा ला के देंगे, बहुत सारे पैसे ला के देंगे, अच्छा से खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा, तो उसके लिए ढेर सारे पैसे लगेंगे ना? हाँ लगेंगे, बहुत पैसे लगेंगे सर। राइट, तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? पापा देंगे सर। कहाँ से आ जाएंगे? जी जी सर, फिर ये पैसे कहाँ से आ जाएंगे अमित भाई? पापा देंगे ना सर। हाँ, पापा तो अभी दे रहे हैं ना, पापा जिंदगी भर तो नहीं देंगे। पापा के पापा अभी उनको दिए थे, उसके बाद पापा के पापा अभी नहीं दे रहे ना। तो एक दिन आप भी पापा बनोगे तो आपको भी अपने बच्चों को देना पड़ेगा ना। तो उसमें आपको अपने बच्चों के लिए देना पड़ेगा। फिर आपके पापा अगर बुजुर्ग हो जाएंगे तो उस समय आपको अपने पापा को भी देना पड़ेगा ना। जैसे आपके पापा अपने पापा का ख्याल रखते हैं ना, दादाजी का। नहीं सर, दादाजी तो चल बसे सर। राइट, तो जब तक दादाजी थे, पापा ने उनका आखिरी समय में ख्याल रखा ना, अपने साथ रखा ना, उनकी सेवा की ना। नहीं दादाजी सर, दादाजी एक्सपायर्ड, व्हेन ही एक्सपायर्ड ही वाज वेरी हेल्दी, और वो खेत बेत का काम करते थे, तो ऊपर से दादाजी मुझे भी संभालते थे, पापा को भी संभालते थे, और खूब मजा करते थे। वेरी गुड, वेरी गुड। खेत में जाते तो थे। अभी देखो दादाजी चले गए तो पापा के पास में आप संभाल रहे हो। ऐसे आने वाला टाइम में आपके बच्चे आएंगे, उनको भी संभालना होगा। वो आपका बच्चा भी इतने ही शौक से बोल पाए, जैसे आज आप बोल रहे हो ना पापा का है, जी वैसे कल को वो भी बोले कि मेरे पापा का बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा अच्छा घर है, अच्छा इंसान है पापा मेरे।
तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए तैयारी करने के लिए अपने को ना अच्छा पढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा हम पढ़ेंगे तो और आगे बढ़ेंगे और तरक्की करेंगे, और ज्यादा हम पैसा भी लेके आ पाएंगे, इज्जत भी लेके आ पाएंगे। आज देखो समाज में कॉन्ट्रैक्टर बहुत सारे ठेकेदार है, बहुत पैसा कमाते हैं। ये हाँ जो बॉडी बिल्डर है, ये जो भाई लोग होते हैं पैसा कमाते हैं, उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है ना। आप सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट किसको देते हो, पापा को कि अपने टीचर को? इधर सर हमारे एरिया में जो भाई लोग वगैरह है ना, तो वो जब भी इलेक्शन वगैरह रहता है तो पापा को मिलने आते हैं, पापा के पाँव छूते हैं और बड़ा बड़ा पैसा दे के जाते हैं सर। और पापा को? हाँ, माय फादर अरे वाह, इज पॉलिटिशियन सर, एंड मैं भी अभी प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं स्पीच बनाना सीख रहा हूँ सर। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर आपने पढ़े लिखे के, आपने ये आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? सुना है सर, वो गांव में रहते थे वो और वो भी बहुत बड़े नेता थे ना, वो भी बहुत बड़े नेता थे ना। हाँ बड़े नेता। उन्होंने देश को, हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी, पूरे वर्ल्ड में एक नया मुकाम दिया ना। जी 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 जी। वो भी पॉलिटिशियन थे ना। ओके सर, ओके फाइन। और आपने राहुल गांधी का भी नाम सुना होगा, ये भी नेता है। उसको तो सर हम पप्पू पप्पू करते हैं सर, हालांकि टाइम ही सो बिकॉज ऑफ देयर टाइम ही एजुकेशन, लोग ऐसा, कलाम साहब को ऐसा कोई नहीं बोलता है ना पप्पू वगैरह, क्योंकि उनको लोग एक्सपेक्ट करते हैं, इज्जत की नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई करी टाइम और देश पे अगला मुकाम तक ले गए। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी गुड, टाइम लिमिट वाज देयर नो? वेरी गुड एफर्ट सर, अप्रिशिएबल, मोस्ट अप्रिशिएबल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वंडरफुल एफर्ट सर, बहुत बढ़िया प्रयत्न है। दिस वाज अ रोल प्ले, and in the role play what we do is one becomes a student and one become a trainer and explain the importance। जैसे ही हमने importance of education यहाँ पे explain किया, वैसे समझ लीजिए कि आप में से कोई ऑटोमोबाइल ट्रेनर, जैसे अपने गणेश भाई है, वो अपने सेल्स पर्सन को बताना चाह रहे हैं कि सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि कैसे उनको डेमोस्ट्रेट करना है, क्या करना है। देन गणेश भाई विल बिकम व्हाट? गणेश भाई विल बिकम ऑलवेज अ सेल्स पर्सन, या तो गणेश भाई विल बिकम द कस्टमर एंड सेल्स पर्सन को बोलेंगे कि भाई अभी आप आओ, आप मुझे बताओ कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, टोयोटा क्यों लेनी है, और या तो ये कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या अच्छा है, क्या दम है गाड़ी में। सो दैट ऑलवेज will then create the live atmosphere जैसे अभी हमने आज देखा, right? और after the role play what we need to do is we would be able to only take this one role play, not new role play now, because there are the things which we need to understand behind this also। रोल प्ले के आगे क्या है, पीछे क्या है, वो भी समझना है। so, जैसे आप देखिए कि फॉर द रोल प्ले वी नीड टू हैव द क्वेश्चंस विथ अस, वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू लर्न द क्वेश्चनिंग स्किल्स। क्वेश्चनिंग स्किल हमें खास सीखनी पड़ेगी रोल प्ले के लिए, क्योंकि क्या प्रश्न पूछते हैं, सामने क्या आंसर आएगा। इफ यू आस्क द क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आपको आंसर क्लोज में आएगा। इफ यू आस्क द ओपन एंडेड क्वेश्चन, आपको कुछ भी आंसर आ सकता है, आपको कुछ भी आंसर आ सकता है। तो आपने समझ लीजिए कि पूछा कि चलिए अभी ये अच्छा सा मीटिंग चल रहा है, हमारा बढ़िया सा मीटिंग चल रहा है, मैं खुश हो गया, तो कुछ पीने के लिए मंगाते हैं, क्या मंगाना है पीने के लिए, एंड व्हाट वुड बी द आंसर देन? कोई बोल सकता है कि आज तो कुछ हॉट ड्रिंक पीने को मन कर रहा है, कोई बोले विस्की, कोई बोले रम, राइट? तो rather than having the open ended question at some places, we should ask not कि क्या पिएंगे, हमें पता है कि सामने वाला कोई भी आंसर दे सकता है, he is actually free for that answer, then in that case we should always answer, we should always question, सर क्या पिएंगे, चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे? दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हमें हमारे दायरे के अंदर उसको ले जाके नैरो करके वहां पे रेडी करने के लिए बहुत जरूरी है। तो थ्रू दिस second learning, that after having our beyond boundary understanding at part 1, now in this part 2 what we are learning here is, in this part 2 we are learning the uses of role play for the training programs, the uses of role play for the training program, the uses of role play for giving the right understanding, for creating the brainstorming environment, ट्रेनर का, कस्टमर का ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे होगा, क्योंकि सामने ऑब्जेक्शन इतने मिलेंगे हमें, जो ऑब्जेक्शन को हमें हैंडल करना है वो स्किल्स यहाँ पे डेवलप होगी। नाउ आई विल with the time I will just narrate some of the conversation with Anil sir. I will also require volunteer to take participation. What were your learnings?
Was he able to explain the importance of education to the student? Question 1. What were the effective questions and what question can be built upon newly? There are very few questions for this understanding. Was he able, क्या वो importance of education सामने वाले स्टूडेंट को समझाने के लिए सक्षम हुए? नंबर 1. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कौन कौन से उनके जो क्वेश्चन थे, कौन सा कन्वर्जेशन उनका पावरफुल रहा, इंपैक्टफुल रहा, और कौन से कन्वर्जेशन को उनको ऐड करना चाहिए था या इंप्रूव करना चाहिए था? If any volunteers can come up and share in this, including Anil sir, you also, your own understanding, your own learning during this conversation. If you have got any special learning throughout this conversation of a student and a trainer or a student and a teacher, you can always come out. So forum is open for this discussion to understand the impact of role play and how we should do the role play. Yes, forum is open. We are into the part of facilitation skills. We are learning the uses of role play, one of the method for the training and facilitation. Yes. Any volunteer? Role play from both the sides was very good. Both matlab an, teacher and student were very tough negotiators, I must admit. But अनिल भाई के बारे में मैं ये बोलूंगा, but he was not मतलब fully able to convince you, क्योंकि यहाँ पे student was bit more tough, ऐसा था. एंड सेम चीज जो आज यहाँ पे हुई, ये सेम चीज मैं मेरी टीम के साथ करता हूँ और मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ. वहां पे मैं एग्जाम्पल उनको ये बोलता हूँ कि आपको दाऊद बनना है कि एपीजे कलाम बनना है, आप डिसाइड करो. Right. तो वहां से काफी चीजें निकलती हैं. ओवर टू यू. Okay, that's great. Very happy to listen that you are using such role plays in your forum and very effective. उनको live exposure मिलता है, उनको बोलने का मौका मिलता है. उनका बेनिफिट एक मैं बताऊंगा इसका, उनका फियर निकल जाता है जब रियल फील्ड में वो पहुंचते हैं. रियल फील्ड में जब जाते हैं तो उन्होंने एक बार ये बात करी है, एक बार क्वेश्चन फेस किया है, तो उनको कोई ना तो शर्म रहती है ना हिचकिचाहट रहती है. दे कैन स्मूथली आंसर or they can smoothly be on the driving seat while the conversation or the discussion. So that's wonderful sharing, Prakash sir, from your side. Anyone else? Would like to have participation? Yes. Amit bhai, Soham here. Soham sir, welcome on board sir. We were waiting for you. अनिल जी का जो रोल प्ले उन्होंने किया था बहुत बढ़िया था. His questionings were very good at initial stage, and in fact this happens to every trainer, even me or any good trainer. Sessions hijacks at times, but trainer के लिए बहुत ही एक important जरूरी है कि दिमाग की बत्ती चालू रहनी चाहिए. यहाँ पे आप उसको एक ट्रिगर आंसर देते हो. एज यू सेड, यू आर लर्निंग पॉलिटिक्स. आप स्पीच लिखना सीख रहे हो, राइट? यू मेंशन दैट इन द सेशन. Yes. That was a point of turn where Anil could have trapped you. Excellent. And आप सीख ही रहे हो ना, क्यों सीख रहे हो? This is the way we trainers should turn the table and get out of the hijack trap. This is what we need to learn. हमारा You are sir man of अमित बताइए. You are man of the match sir. You deserve a big chocolate from our मैंने जो उनको दिया था, that's called lollipop, that's called the hint. तो मैंने उनको बताया कि I am learning speech. मुझे भी नेता बनना है पापा के जैसा. सो स्पीच अच्छा सीखने के लिए पढ़ाई जरूरी है. यहाँ से अपने excellent, wonderful. And पढ़ाई नहीं, he could. One more thing, Amit bhai, study is a very broad word. He could have taken, or in that place, anybody who is a volunteer can take it to study as a learning
And why learning is important, then it would have been derived very easily. And this is what we need to do. There is nothing wrong and right what one is doing. But Excellent. हमारी मिनटों खा के जाना रही है. Excellent, sir. Excellent. So we need to be little macro, sir. Thank you, Amit bhai. Welcome once again. Welcome, Sohan sir, and thank you for sharing your learning and keen observation. What specifically your sharing came out with was that we need to be macro. We need to be macro in all our thinkings. Perception sometimes keeps us micro. We need to flush out this perception. कि पढ़ाई किया तो नौकरी मिलेगा, ये बात को फ्लश आउट करना पड़ेगा. वी नीड टू बी द रियल इंडियन. इंडियंस आर नॉट फेमस फॉर द जॉब्स. इंडियंस आर नॉट ओनली फेमस फॉर द जॉब्स. we are here for the creativity. So congratulations once again. Congratulations for the great sharing and the learning and keen observation. Yes, Som sir, your raise is hand. सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा सर. अच्छा, गणेश भाई. We will have only, yes, Ganesh bhai, now we will have only 1 or 2 sharings for this exercise. This was a crucial exercise, understanding role play as a facilitation skill, and then we will see something more in our part 3, right? We are into part 2 today, and we will surely have great learning in part 3. But let us take your learning, Ganesh bhai, please. Welcome. सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा. जी बिल्कुल बताइए. हाँ सर, एक हमारे ऑटोमोबाइल लाइन में होता है FAB, फैब मतलब होता है फीचर एडवांटेज बेनिफिट. ठीक है, बढ़िया. मेरा ये मानना है कि अपन किसी भी बंदे को उस फीचर मतलब जैसे फीचर हो गया या पढ़ाई एजुकेशन, ठीक है, एडवांटेज हो गया, एडवांटेज Yes, I am there. We are listening to you. Feature, advantage and benefit. Having बता रहे हैं सर. Very important for automobiles, not only automobiles. Any field जहाँ पे आपको सेल करना है, जहाँ पे आपको मार्केट करना है, you need to understand savings. We are unable to listen you, Ganesh bhai. Yes, Soham sir. अमित भाई. जी. आवाज आ रही होगी. Yes sir. हाँ. So, एक होता है हमारे अमित भाई, सोहम हियर. एडवांटेज और बेनिफिट. Ganesh bhai, you are not audible. If you can write and share your comments there. If you can write and share your comments in the group chat, would welcome, because now we are only. हाँ ठीक है सर. हेलो. मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा मैं. जी. Yes, Soham sir. अमित भाई, कल लेस्ली सर ने एक बहुत बढ़िया सी बात बताई थी कि we all are powerhouse and we have got all lot of knowledge we are gathering from here and there, from peer learning, from learning from the students. But what happens is हमारे पास इतनी सारी गोलियां हैं कि हम दागना शुरू कर देते हैं. हमें हमारी गोली बचा के रखनी है और हमें भी बचना है. So ट्रेनर जितना मूर्ख हो सकता है ना, उतना अच्छा ट्रेनर हो सकता है. ऐसा मेरा अनुभव है. 17-18. Perfect sir, perfect. And with this learning we end this part 2 for the facilitation skill. This part was how we shall use role play as a facilitation skill or Amit sir. in the training. I would like to conclude this session. We would be rejoining Amit sir. part 3. Leslie sir. We are. Can I say? Sir, I would like you to share your comments in the part 3, sir. We are Okay, done. We have got only 30 seconds now, and we should rejoin the same meeting. We should rejoin the